ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. جس نے اس کی اطاعت کی اور اسے دوست بنایا وہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اور اس کی نافرمانی کی اسے ذلیل کرتا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رب ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی معبود. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کی چیزیں ہیں. اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کو یاد کرو. اللہ نے فرمایا جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے. قیامت کے دن کے لیے سب سے بہتر توشہ اختیار کرو. دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی دھوکے دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے. اللہ کے بندو، صحیح منہج اور درست مسلک مخلص عقل مندوں کو اللہ کی نعمت و اکرام کو ہمیشہ یاد کرنے پر ابھارتا ہے، اس لیے کہ اسی نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور و یقین کی پختگی سے زندہ کیا، انہیں اس حق کی طرف رہنمائی کی جسے اللہ کے تمام رسول لے کر آئے ہیں. انوار ہدایت نے انہیں ڈھانپ لیا، چنانچہ انہوں نے گمراہوں کی گمراہیوں اور جہالتوں کو دیکھ لیا جن میں وہ گمراہ لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، جن سے ان کے لیے کوئی رہائی نہیں ہے، جن کی تاریکیوں سے ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور جن کے برے انجام سے ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. ارشاد ربانی ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا ہے؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں. انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری اور اس کی شریعت کی اتباع اور نادان خواہش پرستوں کی پیروی سے بچنا ان کے لیے ضروری و لازم ہے اور ان پر عائد کی گئی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کے سب سے معزز شخص صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اپنے اس قول میں اس کا حکم دیا ہے. پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں. یہ آیت اس دین کے کمال اور اس ملت حنیفی اور شریعت محمدی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، کوئی عبارت اس کے کمال کو نہیں پا سکتی، کوئی وصف اس کے حسن کا ادراک نہیں کر سکتا. عقلاء کی عقلیں گرچہ وہ کسی کامل ترین شخص کی عقل پر اکٹھی ہو جائیں پھر بھی اس سے بہتر کی تجویز نہیں پیش کر سکتی. کامل و فاضل عقلوں کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اس کے حسن کا ادراک کیا اور اس کی فضیلت سمیت اس بات کی گواہی دی کہ دنیا میں کوئی شریعت اس سے زیادہ کامل و برتر اور عظیم نہیں آئی. یہ بذات خود شہادت دینے والی بھی ہے اور اس کے لیے شہادت بھی دی گئی ہے، یہ حجت بھی ہے اور اس کے لیے حجت بھی پیش کی گئی ہے، یہ دلیل بھی ہے اور دعویٰ بھی. اگر رسول اس پر کوئی برہان لے کر نہیں آتے تو بھی وہ خود ہی برہان و نشانی ہونے اور اللہ کی طرف سے ہونے کی گواہی دینے کے لیے کافی تھی. پوری شریعت اللہ کے کمال علم و حکمت، اس کی رحمت، بھلائی اور احسان کی وسعت کی گواہی دے رہی ہے، ساتھ ہی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ غائب و حاضر کا احاطہ کیے ہوا ہے اور آغاز و انجام کا پورا علم رکھتا ہے، اور اس بات کی بھی گواہ ہے کہ یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں. اس نے
उन पर कोई ऐसा इनाम नहीं किया है जो इस बात से बढ़कर हो कि उसने उन्हें उस शरीयत की हिदायत दी, उन्हें उसके मानने वालों में से बनाया और उन्हें उन लोगों में से बनाया जिनके लिए उसे पसंद कर लिया और जिन्हें उसके लिए पसंद कर लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान जतलाया कि उसने उन्हें उसकी हिदायत दी। इरशाद रब्बानी है, बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस शरीयत के अजीम एहसान का तारुफ और याद दहानी कराते हुए और उन्हें इसके मानने वालों में से बनाने पर उस जात का शुक्र बजा लाने का मुतालबा करते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। गौर करें कि अल्लाह ताला ने कैसे इस दीन को जिसे उनके लिए चुना है कमाल से मुत्तसिफ किया और इस नेमत को जिससे उन्हें भरपूर नवाजा है तमाम से मुत्तसिफ किया। ऐसा करके दीन के बारे में ये बताना है कि उसमें कोई नक्स, ऐब और खलल नहीं है, उसमें कोई भी चीज किसी तौर पर हिकमत से बाहर नहीं है, बल्कि वो अपने हुस्न व अजमत में कामिल है। और अल्लाह ताला ने इस नेमत को तमाम से ये बताने के लिए मुत्तसिफ किया कि वो हमेशा रहेगी और जारी रहेगी और उसे देने के बाद अल्लाह ताला उनसे नहीं छीनेगा, बल्कि इस दुनिया में और आखिरत में उसे हमेशगी और दवाम अता करके पूरा करेगा। उनकी बात खत्म हुई। ऐ अल्लाह के बंदो, तो क्या दीन से ज्यादा कोई कीमती चीज है जिसे अल्लाह अलीम व हकीम ने अपनी मखलूक के लिए पसंद कर लिया हो, जिसे उसकी जात तक पहुंचने की राह बनाया हो, उसकी खुशनुदियों, मगफिरत और बुलंद जन्नतों में दाखिल होने का रास्ता बनाया हो, जिसे जमीन में इस उम्मत मोहम्मदिया की सरबलंदी और इस्तेहकाम का सबब बनाया हो, जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे अहमद ने अपनी मुस्नद में और हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में सही सनद से उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत को रिफत, मुल्कों में इस्तेहकाम और फतह और नुसरत और दीन की सरबलंदी की खुशखबरी सुना दें। उनमें से जिसने भी दुनिया के लिए आखिरत का अमल किया तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, असहाबे बसीरत जब उन पर तिलावत की जाने वाली अल्लाह की निदा को सुनते हैं तो वो अपने आप को मजबूर पाते हैं कि उसे कान लगाकर सुने और अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहें, इसलिए कि यह ऐसी दावत है जिसकी बजाआवरी से दिल जिंदा होते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाते हो और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है और बिला शुबहा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी किताब के तरीके और अपने नबी की सुन्नत से फायदा पहुंचाए। मैं अपनी ये बातें कहता हूं और अल्लाह अजीम जलील से अपने लिए और आप सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हर तरह के गुनाह से मगफिरत तलब करता हूं। यकीनन वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो कारसाज और काबिल हम्दो सना है, जो चाहे उसे करने वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं, वो अजीम अर्श वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह, दरूद व सलाम नाजिल हो तेरे बंदा और रसूल मोहम्मद पर और उनकी आल और उनके सहाबे किराम पर। अम्मा बाद, इस शरीयत मोहम्मदी और मिल्लत हनीफी के महासिन शुमार से जायद और गिनती से बालातर हैं। उसके शर्फ के लिए यही काफी है कि अल्लाह ताला ने उसके जरिए रूह और नफ्स, माल और अक्ल और इज्जत और आबरू की हिफाजत की है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने नाहक किसी ऐसे नफ्स के कत्ल को हराम करार दिया जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। ज़िना के जरिए बिस्तरों को नापाक करके आबरूओं के पामाल करने को हराम करार दिया और उसने उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल को मना किया है जो अक्ल की सलामती के लिए ख़तरा हो या उसमें कमी पैदा करती हो, जैसे शराब, ड्रग्स और नशा आवर चीज़ें, और लोगों के अमवाल को बातिल तरीके से खाने से मना किया है, खा उसकी शक्ल सूरत में
जो भी शक्ल सूरत उसकी हो। अल्लाह ताला ने शरीयत इस्लाम के ज़रिए पूरी मखलूक के माबैन इंसाफ के उसूलों को रासिख फरमाया, खा वो मुस्लिम हो या काफिर, अरबी हो या आजमी, काला हो या गोरा, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, और अल्लाह के तकवा को उनके माबैन बाहमी फजीलत की बुनियाद बनाया। इरशाद रब्बानी है, ए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिए हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बाइज्जत वो है जो सबसे ज्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह दाना और बाखबर। अल्लाह ताला ने अजीम रब्बानी शरीयत में हर इंसान के हक की हिफाजत की है और उसके ऊपर जो वाजिब है उसकी वजाहत की है। इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए शरीयत इस्लाम के अलावा बहुत सारी इंसानी शरीयतें बन चुकी हैं, लेकिन ये शरीयत उन तमाम शरीयतों की कमजोरी और कमी से महफूज है। उसने इंसान के मर्तबे को बुलंद किया, उसकी करामत की हिफाजत की, और इसीलिए हकीकी मोमिन को इस बात में कोई हैरत व शक नहीं होगा कि उसके रब की शरीयत और उसका दीन व तरीका ही दुनिया व आखिरत में निजात की राह और सआदत का रास्ता है। लेकिन जिसने अपने रब के जिक्र से एराज किया, उसके हुक्म की मुखालफत की, उसकी राह से अलग हुआ, उसके अलावा दूसरी चीज में हिदायत और सआदत तलाश की, अल्लाह ताला ने उसके मामले का अंजाम बयान किया है। अल्लाह ताला ने कहा, और हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, इलाही, मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा, इसी तरह होना चाहिए था, तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया तो आज तू भी भुला दिया जाता है। अल्लाह के बंदो, जिंदगी की तंगी माल की कमी और साजो सामान की किल्लत से नहीं है, बल्कि वो इब्ने कसीर रहमहुल्लाह के बकौल इस बात से है कि इंसान को तुमानीनत और राहत कल्ब न मिल सके, उसका सीना तंगो परेशान रहे। गर्चे जाहिरी तौर पर उसके पास नेमतें हों, गर्चे जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहां चाहे रहे, लेकिन इन सब के बावजूद उसका दिल बेचैनी, परेशानी और शक में हो और वो हमेशा अपने शक में पड़ा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, खातिम रसूल पर दरूद और सलाम भेजो, इसलिए कि तुम उसका अल्लाह की किताब में हुक्म दिए गए हो। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। ए अल्लाह, दरूद और सलाम भेज अपने बंदा और रसूल मोहम्मद पर। ए अल्लाह, उनके चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राजी हो जा, और तमाम सहाबा और ताबईन से, और जो हक के साथ क़यामत के दिन तक उनकी पैरवी करें, उनसे राजी हो जा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा और दीन के किले की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को अमनो इत्मीनान वाला मुल्क बना दे और दुनिया के तमाम ममालिक को अमनो इत्मीनान वाला मुल्क बना दे। ए रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हमें हमारे मुल्क को अमन अमान के साथ रख। हमारे सरबराहान ममलकत को उन तमाम चीज़ों की तौफीक अता फरमा जिसमें मुल्क की और बंदों की भलाई है। हमारे वली अहद को उन तमाम चीज़ों की तौफीक अता फरमा जिसमें मुल्क की और बंदों की भलाई और मफाद है। ए अल्लाह, हमारे दिलों में तक़वा अता फरमा दे, हमारे दिलों का तज़किया फरमा दे। तू हमारे दिलों का सरपरस्त और वाली है। ए अल्लाह, तू हमारे दीन की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, तू हमारे लिए दुनिया में हमारे लिए हमारी इस्लाह फरमा दे और हमारे लिए आखिरत में हमारी इस्लाह फरमा दे। ए अल्लाह, हम तुमसे इस बात की दुआ करते हैं कि हमें अच्छे कामों के करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से रोक दे, दूर कर दे। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को सुन ले। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं नेमतों के ज़ाइल होने से, अचानक मुसीबत के आने से और हर तरह की नाराजगी से। ए अल्लाह, अपने दुश्मनों और हमारे दुश्मनों से तू हमारे महफूज फरमा दे।
اے اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں سے تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ہم تمہیں ان کے سامنے کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ان سے محفوظ کر لے. اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم ان کے شروں سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دے, انہیں محفوظ کر دے. اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ہر طرح کی بیماری سے ہم پناہ چاہتے ہیں مولا. برس سے, کوڑ سے, ہر طرح کی بری بیماریوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر, اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے.